वेलकम बैक चिल्ड्रन. वी आर कंटिन्यूइंग द लेसन अक्षरों का महत्व, पेज नंबर 30. You can see some picture there written with a green color ink, and these were used in Middle America. It's a Ozimbawa tribal pics. दाई ओर से बाई ओर को क्रमशः, द राइट टू लेफ्ट, तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है. द राइट फर्स्ट पिक्चर इज इंडिकेटिंग द स्टॉर्म गॉडेस, that is whole sky is covered. Nagada, that is drum, that is announcement they are doing, that is called by drumming, that one peak. Then पंखों से सुशोभित नगाड़ा, with wings like a drum. The next one is द्रोण काका. द्रोण काका means forest crow. कौवा means normal crow. और दवाखाने में आदमी, and one person in hospital. दवाखाना means medical that shop. अक्षरों की खोज. Now continuing the lesson. अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई. Invention of the letters, together the new era started or beginned. आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा. And people started keeping records by writing. Vichar means their emotions and their thoughts. These all they kept as a record. Started keeping as a record. तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा. Then onwards, people called cultured or like gentle people. आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ. When the person started writing, then onwards the history begin. किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है. Any nation, कौम means nation, देश means country. Okay. इतिहास means the history will start जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं. When the person's writings are getting, that time any nation or country's history will start. इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए. Like the history started hardly it 6000 years over. उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं. Before the time or period is called prehistorical time यानी before the history time. अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते. That's why the people, if they didn't invented or researched about the letter, now we won't get any knowledge of our history. हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि. So we cannot get an information of the previous nearly 1000 years, the people, how they were living, what they were thinking, and who all became kings, etc. So we won't get any information if we cannot read, right? अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है. Invention of letter is the great invention of the human being. Topmost invention. Okay.
अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। अक्षरों की खोज करने के बाद, आफ्टर इन्वेंटिंग द लेटर्स, मनुष्य अपने विचारों को, द पीपल देयर थॉट्स दे स्टार्टेड कीपिंग बाय राइटिंग। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरे पीढ़ी करने लगी। लाइक द one generation information or knowledge started using by the next generation. अक्षरों की खोज करने के बाद, आफ्टर इन्वेंटिंग द लेटर्स, पिछले 6000 सालों में, एंड द बिफोर 6000 ईयर्स, मानव जाति का तेजी से विकास हुआ, एंड द ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड डेवलपिंग फास्टली within the 6000 years. यह विकास हुआ मीन्स डेवलप्ड। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। द इम्पोर्टेंस ऑफ अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेटर्स एंड इट्स द स्क्रिप्ट्स that we are using na ka kha ga nga ai, that is called scripts in Hindi. Okay, these all are the importance and the what we say, that is the invention happen. अतः हम सबको अक्षर की कहानी मालूम होनी चाहिए। That's why we should know about the letter story. अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। We should know about the story of letters. आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं, the letters we are learning today, या लिखते हैं और राइटिंग, वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी है भी। एंड कब मीन्स व्हेन इट मेड, एंड वेयर इट मेड, कहाँ मीन्स वेयर, और किसने बनाए, हु मेड दिस, यह जानना है ज़रूरी है भी। एंड यू शुड गेट द नॉलेज ऑफ दिस। इट इज़ मस्ट दैट यू शुड नो हाउ द लेटर्स formed, when it is formed, when it is discovered, and where it is. These all information you should know. Then only you will get interest to read again and again. Those who are having interest, so many language they are reading now. You people will be reading most of the language might be English. Even then, if you are reading the other language, you can see the page number 31. There निबंध से आगे 4th question, पेज नंबर 31, यू कैन सी एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है। वन थिंग यू कैन यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस टू एक्सप्रेस, उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल्सो यू कैन यूज विथ वन स्क्रिप्ट्स। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। डाउन यू कैन सी डिफरेंट लैंग्वेजेस इट्स रिटन। इन्हें ध्यान से देखो और इनमें से दिए गए वर्णों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो। यू कैन सी देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस यूज्ड बट द सेम थिंग दे सेड। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन मेक ए न्यू वर्ड विथ दिस डाउन लेटर्स। ओके, देयर इज क्या शानदार दिन है इन हिंदी रिटर्न, सेम थिंग क्या शानदार दिन है इट्स पंजाबी रिटर्न, क्या शानदार दिन है इन ओडिया रिटर्न, क्या शानदार दिन है तेलुगु रिटर्न। सो सेम थिंग दे रिटर्न इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. It is only for your information, okay? It's not for studies and all. Okay, children, this lesson over. I'm concluding now, and we will meet the next class with the Prashna Abhyas and meanings. Then coming the exercise of the textbook Bhasha Ki Baat. Okay, bye bye, children. Take care.